Hello friends. So in this video we'll discuss the water absorption by root. Okay. We are continuing the chapter plant physiology and development. So in this chapter a part that is water absorption by root will discussed here. Water absorption by root. So in previous class we saw a picture of root, basic root, that is the here the root cap, and here the root hairs, the extensions of epidermis cell. So water absorption by root, that is the this is a close contact between the surface of root and soil is essential. If there is the soil level, okay, the closeness of root and soil will be maintained. That is the essential for effective water absorption. Okay, because it needed the surface area for water uptake. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना क्या वाटर ऑब्जर्व होगा रूट के अंदर. सो ये जो रूट हेयर जो एक्सटेंशंस है ऑफ रूट एपिडर्मल दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये जो रूट हेयर्स होता है ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया दैट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट. Okay, then that close contact between soil and root surface is easily ruptured. ओके, दैट जो ये जो क्लोजनेस होता है इजीली रप्चर हो सकते हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं व्हेन सॉइल इज डिस्टर्ब्ड. हम जब एक एक छोटा सा पेड़ है लगाते हैं तो उसे जब उखाड़ते हैं तो सॉइल डिस्टर्ब हो जाता है. ये सर नो, उखाड़ते हैं क्यों? और उसको उसको लेके एक और जगह में ट्रांसप्लांट करने के लिए. Yes or no? So the close contact between soil and root surface is easily ruptured when soil is disturbed. That's why we have to protect the water loss for the first few days after transplantation. if हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो ये जो मेंटेन होना चाहिए क्या, तो फर्स्ट फ्यू डेज तो वाटर लॉस जो होता है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे. फर्स्ट फ्यू डेज हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो सॉइल डिस्टर्ब हो गया था वो मेंटेन हो जाएगा. ठीक है. सो जो वाटर ऑब्जर्प्शन होता है, ओके, वाटर जो ऑब्जर्प्शन होता है वो तीन तीन डिफरेंट प्रोसेस के, ओके, वाटर जो ऑब्जर्प्शन होता है तीन डिफरेंट प्रोसेस में होता है. ठीक है. ये जो वाटर मूव करता है, मूव्स इन रूट. ओके, रूट में ऑब्जर्प्शन हो गया, ऑब्जर्प्शन ऑब्जर्प्शन डन. देन ये जो रूट ऑब्जर्व किया है जो वाटर को, उसको क्या करेगा, मूव कराएगा. प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं उसको मूव कराएगा. ठीक है. तो थ्री डिफरेंट टाइप्स है वाटर मूवमेंट के. फर्स्ट वन इज अपोप्लास्ट pathway. Second one is transmembrane pathway. Transmembrane pathway. And third one is simplest pathway. Simplest pathway. ये जो तीन वाटर मूव्स इन रूट भाया दिस पाथवे. ठीक है. तो पहले हम देखेंगे जो अपोप्लास्ट पाथवे होता है वो क्या होता है. ठीक है. Then first of all we will see the apoplast pathway. So
in this pathway, in apoplastic pathway, water moves through the cell wall without crossing any membranes. ये जो सेल वॉल में क्या होगा, वाटर मूव करेगा, प्लांट के जो सेल वॉल होता है उसको सेल वॉल के थ्रू क्या करेगा, वाटर मूव करेगा, लेकिन विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन्स. ओके, इट इज द continuous system of cell wall and intercellular spaces in plant tissue. If this is a plant tissue, this is a plant tissue, okay, and the apoplastic pathway is seen here, then the water will move from this way. ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो स्पेस होता है ना, ये जो स्पेस होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस, मतलब सेल सेल में जो स्पेस होता है, ठीक है, ये होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस. दोनों सेल के अंदर जो स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस. सो apoplastic pathway will seen like this. ठीक है, तो in this pathway water moves through the cell wall without crossing any membrane. ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस नहीं करेगा, उसके जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उसके वया क्या वाटर मूव करेगा. ठीक है, इट इज द कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ सेल वॉल. इट विल द मूवमेंट ऑफ वाटर विल कंटिन्यूसली seen in the cell wall and intercellular space in what plant tissue. Got it? Then we will see the transmembrane pathway. Transmembrane pathway. ठीक है, transmembrane pathway. Okay, so in this pathway, followed by a water that enters a cell on one side and exit in another side. Okay, if a plant cell is here, okay, then water will move like this. Okay, and this is the water will move like this. It penetrates the membrane and like this. Got it? ये जो होता है, ये जो 2 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, एक जो एंट्री करने के टाइम एंड 2 बार जो करेगा वो एग्जिट करने के टाइम. ठीक है, ये 2 बार क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, दैट इज द ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे. ओके, दिस इज द पाथवे followed by water that enters a cell on one side and exits the cell in other side. Okay, वाटर क्रॉसेस एटलीस्ट 2 मेम्ब्रेन पर ईच सेल. ईच सेल में ये जो 2 मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. ठीक है, एक एंट्री करने का टाइम, एक एग्जिट करने का टाइम. ठीक है, देन वी विल सी द सिम्प्लास्टिक पाथवे. ओके, सिम्प्लास्टिक पाथवे. ये जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है, वन सेल टू अनदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा. गॉट इट? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. See, through प्लाज्मोडेस्माटा. वन सेल एंड अदर सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, वो जो बैरियर होता है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं. प्लाज्मोडेस्माटा. And here the transmembrane pathway is by what? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. इट विल क्रॉस द cell membrane, and in apoplast pathway it will cross what? It will cross the intercellular
इंटरसेल्यूलर व्हाट इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो हम देखते हैं इंटरसेल्यूलर, वो कुछ जो मेम्ब्रेन को क्रॉस किया नहीं किया। तो ये होता है एपोप्लास्टिक, ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे एंड लास्टली सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, वो हम देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। ठीक है, ओके, डिटेल में देखेंगे। ये जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द दिस इज द लेट मेटाजाइलम, दिस इज द लेट मेटाजाइलम, देन this is the endodermis layer, okay, but this is the endodermis layer and endodermis के जो नीचे से लेकर बट लेट मेटाजाइलम तक ये जो पार्ट होता है उसको हम स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील। ठीक है, इसे देखो, ये जो फर्स्ट ये जो होता है वो होता है प्रोटोजाइलम के, ये जो बहुत थीन हो रहा है, ओके, देन दिस इज द प्रोटोजाइलम, ओके, उसके जो अंदर होता है फर्स्ट लेयर इज प्रोटोजाइलम, सेकेंड इज द अर्ली मेटाजाइलम। ठीक है, एंड ये जो बड़ा वाला होता है वो होता है लेट मेटाजाइलम। ठीक है, ये होता है एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस लेयर के ये जो लोअर वाला पार्ट है उससे लेकर जो लेट मेटाजाइलम तक वो होता है स्टील। ठीक है, एंडोडर्मिस के ऊपर जो लेयर होते हैं वो होते हैं कर्टेक्स। एक्सोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो लेयर होता है वो होता है कर्टेक्स, मतलब एक्सोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इन बिटवीन जो सेल होता है वो होता है कर्टेक्स। कर्टेक्स के ऊपर होता है एक्सोडर्मिस, देन जो होता है वो होता है कास्पेरियन बैंड। ठीक है, ये जो कास्पेरियन बैंड होता है ये सुबेरिन से क्या होता है, सुबेरिन का कंपोजिशन होता है यहाँ। ओके, ये जो होता है कास्पेरियन बैंड, यहाँ पे सुबेरिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो अपोप्लास्टिक मूवमेंट और अपोप्लास्टिक क्या अपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो सुबेराइज्ड है ये सेल, यहाँ हमें सिम्प्लास्टिक पाथवे चाहिए। ठीक है, देन दिस इज द दिस लेयर इज द सुबेरिन लामेला। सुबेरिन लामेला, ये जो पिंक पिंक देख पा रहे हो ना आप, ये होता है सुबेरिन लामेला एंड दैट इज द एंड दिस पार्ट इज द पैसेज सेल। ठीक है, एंड दिस इज द राइजोडर्मिस। ठीक है, एंड ये जो होता है तो आपका रूट हेयर होता है। ठीक है, ये जो रूट हेयर क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए, देन वाटर ऑब्जर्व हो गया रूट के अंदर, देन ये जो रूट हेयर से ये पास करता है ये जो रूट हेयर से ये क्या होता है, ऑब्जर्व होता है फ्रॉम रूट हेयर टू द मेटाजाइलम। दैट इज ये जो रूट का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है रूट का है। रूट जो वाटर जो ऑब्जर्व होता है जो रूट हेयर से लेकर रूट तक का सफर, that is seen here. Okay, that will be discussed here. See, so this part the root here, okay, will this is the pathway of what, दिस इज अ पाथवे ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। देखिए ये जो क्रॉस किया है, जो सेल मेम्ब्रेन को 2 बार क्रॉस किया है। ठीक है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, और ये जो होता है ये जो आपका ग्रीन कलर में शो किया है मैंने, ये क्या होता है, ये होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा को देकर ये क्या करता है, वाटर मूवमेंट होता है। ओके, ये सेल को क्रश किया है क्या, नहीं किया है, मेम्ब्रेन को नहीं क्रश किया है, वो सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा के वजह क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला जो रेड कलर का जो है वो होता है क्या, ये जो अपोप्लास्टिक पाथवे होता है। ये जो अपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेस को देखकर क्या होता है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है,
सो व्हाट इट देन रेड वाला ये जो है अपोप्लास्टिक पाथवे, देन ये जो ग्रीन वाला है वो होता है क्या सिम्प्लास्टिक पाथवे, एंड ये जो ब्लू वाला है मैंने उसको वाइट कर दिया है, ठीक है, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे होता है, ठीक है। देन वी विल सी, बट सी द सॉल्यूट जो ये जो ट्रांसपोर्ट के वक्त जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें थोड़ा थोड़ा आयन भी हो जाता है, रह जाता है। जो आयन कैसे मूव और आयन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है रूट में, वो हम देखेंगे, ठीक है। सी, सो द solute, okay, accumulation, solute accumulation, accumulation in xylem. Why xylem? Because the water transport via xylem, वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जाइलम से होता है, ये रूट जाइलम मैंने यहाँ दिखाया ना आपको, ये जो लेट मेटाजाइलम, ये जो प्रोटोजाइलम, ये जो होता है अर्ली मेटाजाइलम, ठीक है। ये जाइलम जो होता है वो ही होता है आपका क्या कैरियर ऑफ मिनरल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज द कैरियर, ओके। So accumulation in xylem can generate root pressure. रूट प्रेशर क्या होता है हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये जो सॉल्यूट जो एक्यूमुलेट हो जाता है जो सॉइल वाटर में, वो क्या करता है ना जाइलम में क्या करता है रूट प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। सो देन रूट विल क्रिएट व्हाट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, okay, hydrostatic pressure by absorbing ions from the diluted soil and transporting them to the xylem. ओके, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों क्रिएट होता है ना, ये जो आपका जो होता है क्या, ये जो ऑब्जर्प्शन होता है, ये वो क्या होता है रूट के थ्रू होता है ऑब्जर्प्शन। देन ये जो डाइल्यूटेड यहाँ ये जो सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर है, रूट हेयर विल ऑब्जर्व दिस एंड वाटर प्लस सल्यूट होता है, वाटर भी जाएगा एंड सल्यूट भी जाएगा रूट के अंदर, देन एंड ट्रांसपोर्टिंग देम टू द जाइलम, रूट से ये जो जाइलम तक, रूट हेयर से जाइलम को जाएगा क्या वाटर प्लस सल्यूट, ठीक है। देन द सल्यूट इन द जाइलम लीड्स टू डिक्रीज इन द जाइलम ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑल्सो द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, वाटर ये जो सल्यूट होता है वो क्या होता है ना, सल्यूट इन द जाइलम लीड्स टू, ये जो सल्यूट होता है ये क्या करता है वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, ये सर नो, जितना सल्यूट जितना लेस होगा वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर सल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये सर नो, वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू, ओके। देन दिस साई डब्ल्यू प्रोवाइड्स ए फोर्स, ओके, क्या करता है ये जो फोर्स क्रिएट करता है वाटर ऑब्जर्प्शन इन व्हिच टर्न लीड्स टू पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द जाइलम एंड होल रूट एक्ट एज ए ऑस्मोटिक सेल, रूट टिश्यू एज ए ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन, ओके। देन सॉल्यूट इंक्रीज हो गया तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, देन इट विल प्रोवाइड ए फोर्स, ओके, फोर्स क्रिएट करेगा फॉर वाटर ऑब्जर्प्शन, in turn leads to positive hydrostatic pressure, okay, in the जाइलम में क्या होगा, जाइलम में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। देन द होल रूट एक्ट एज ए ऑस्मोटिक सेल, ये जो रूट होता है वो ऑस्मोटिक सेल के बराबर काम करेगा, ऑस्मोटिक सेल के बराबर काम करेगा, और जो रूट टिश्यू होता है
Xylem and whole root and xylem. एंड ये जो रूट टिश्यू होता है वो क्या करेगा, ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन के बराबर काम करेगा. गॉट इट. ओके देन इट अकर्स व्हेन से ये जो रूट प्रेशर होता है ये अकर्स व्हेन सॉइल वाटर पोटेंशियल हाई एंड ट्रांसपिरेशन लो. ट्रांसपिरेशन वी नो, इफ दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज द लीफ, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस इन द एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स में जो होता है वाटर जो लॉस करता है एरियल पार्ट्स में उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. यस सर नो, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके जो रूट प्रेशर होता है वो कब अब वो कब होता है ना, जब व्हेन सॉइल वाटर पोटेंशियल हाई एंड ट्रांसपिरेशन लो. ओके वाटर जो सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल होता है मतलब वाटर जो है ज़्यादा है, ठीक है, सॉइल में ज़्यादा है एंड ट्रांसपिरेशन इज लो. ये जो एरियल पार्ट से जो लॉस होता है वाटर का वो लो होता है एंड वाटर पोटेंशियल सॉइल में हाई होता है. ठीक है, व्हेन ट्रांसपिरेशन हाई वाटर इज टेकन अप सो रैपिडली. जब जो ट्रांसपिरेशन होता है वो ज़्यादा हो जाएगा मतलब ज़्यादा वाटर लॉस करेगा. वो किस वक्त होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो. If temperature is high, then the transpiration process is high also. Okay, the loss of water is seen, and then it occurs when the transpiration is high, water is taken up so rapidly. मतलब यहाँ से अगर वाटर लॉस हो रहा है तो यहाँ से भी वाटर को सक कर रहा है कौन, रूट. ठीक है, देन it taken up so rapidly into the leaves and then the positive pressure never develops. ठीक है, जब क्या होता है वाटर पोटेंशियल जो होता है क्या, ये जो हमारा जो ट्रांसपिरेशन जब हाई होता है, ओके ट्रांसपिरेशन जब हाई होता है ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो कम होता है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा हो मतलब कम हो, ट्रांसपिरेशन अगर कम होता है तब क्या होता है, तब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, देन the plant that develop root pressure frequently produce liquid droplets. ओके रूट प्रेशर अगर फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रहा है प्लांट में वो क्या करेगा, वो जो लिक्विड वो ये एक पत्ता है जो लीफ होता है, ठीक है, ये जो लीफ होता है ओके इसमें अब क्या होगा, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होगा, एक स्मॉल वाटर, ओके मैं कलर चेंज कर देती हूँ, एक स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट विल बी सीन दिस टाइप. ठीक है, आप अगर मॉर्निंग में वॉकिंग वगैरह करते हो तो देखोगे जो छोटा छोटा प्लांट्स जो होते हैं उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स लगते रहते हैं. ये सुनो, देन इट विल बी कॉल्ड द गॉटेशन. ठीक है, GUTTATION. ओके, इफ रूट प्रेशर अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ये जो रूट प्रेशर फ्रीक्वेंटली क्या हो क्रिएट हो रहा है तो उसके जो परिणाम होगा क्या, गटेशन होगा. ये जो लीव्स के जो एजेस में, ये जो धार में एजेस में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट लगा होगा, इसको हम बोलते हैं गटेशन. ठीक है, ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल we see the water absorption by root. Then this is a root
basic root structure, that is the lower part is the root cap and this is the root hair. Then water moves in root via three ways, that is apoplastic pathway, transmembrane pathway and symplastic pathway. Then apoplastic pathway will cross only, it will be through intercellular space only, ठीक है. देन जो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे होते हैं इट विल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. देन जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है ये होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा. Here, here is the detailed description of the three pathways and the structure of the root also. That will be the water transportation from the root hair to the xylem. Then this is the absorption, symplastic and transmembrane. I have to remove the color for your better. Okay, then ये जो white color होता है, ओके उसको हम रिमूव कर देंगे. ये जो ब्लू वाला होता है ना, ये देखो, ये जो ब्लू वाला होता है ये होता है रूट हेयर है. जो ब्लू वाला होता है ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ठीक है. देन ये जो ग्रीन वाला होता है, ओके, ये जो ग्रीन वाला होता है ये क्या होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ओके. एंड ये जो रेड वाला होता है, ये जो रेड वाला होता है वो आपका क्या होता है, एपोप्लास्टिक pathway. Got it? Then the solute accumulation in xylem can generate root pressure. हमने रूट एब्जॉर्प्शन और रूट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा. और देन हमने पढ़ा क्या, ये जो रूट प्रेशर के बारे में पढ़ा, रूट प्रेशर क्यों क्रिएट होते हैं उससे हम देखा, वो जो सिचुएशन होते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ा. देन जाइलेम, ओके, रूट प्रेशर के बारे में पढ़ा. देन हम पढ़ा क्या, ये जो ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर जो क्रिएट होता है उसको, उसका रिलेशनशिप क्या होते हैं, और जो ये गटेशन होते हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं, ठीक है. हमने क्लियर हो गया. देन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो जाइलेम में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होते हैं, और जाइलेम एंड फ्लोएम का जो एक्शन है हम उसे सेकेंड क्लास में वो जो हम क्या बाद में जो क्लासेस होंगे उसमें उसे हम देखेंगे, ठीक है. ओके.